Welcome back, dear listeners and viewers. I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. Do you know that the old Arabic people used ashes to clean their clothes and for other washing activities? Okay? पुराने ज़माने के जो अरबियन पीपल थे वो क्या करते थे? एशेज़ यानी राख को इस्तेमाल करते थे अपने कपड़े धोने के लिए या और भी फॉर एग्जांपल और कोई सफाई का काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल क्लीनिंग देयर डिशेज या क्लीनिंग देयर क्लोथ्स वगैरह. So today the topic which we are going to discuss are alkalis. So the alkali word is taken out from an Arabic word kali, which means ashes. In old time people used ashes for washing clothes plus cleaning. So alkalis are used for washing clothes and for any washing activity. Alkalis are divided into 5 types. There are 5 types of alkalis. यहाँ पर मैंने कुछ alkalis के नाम लिखे with the formulas. One by one we will discuss them and what are the functions of these alkalis. सबसे पहले the most common alkali which nowadays we use, that is called sodium hydroxide. The formula is NaO2 and the common name of sodium hydroxide is caustic soda. सोडियम हाइड्रोक्साइड को डियर लिसनर्स हम लोग caustic सोडा के नाम से भी जानते हैं. ये वही caustic सोडा है जो हम लोग अपने क्लोथ्स या फॉर एग्जांपल कपड़े धोने के लिए या और कोई फॉर एग्जांपल सफाई का काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. थर्ड हमारे पास आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 यानी डबल मोल हाइड्रोक्साइड ग्रुप यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. कॉमनली हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं. फोर्थ पर हमारे पास आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और इसका कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया is a kind of a milk which people use for constipation. Those people, anyone who is suffering from constipation, अगर किसी को कब्ज की बीमारी है तो इसी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को इस्तेमाल कर सकता है. It is a kind of a cure for those people who are suffering from constipation. लास्ट हमारे पास आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. So these all are alkalis. ये सारे क्या है? Alkalis है. Okay, and these are the formulas. Today आज मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. When we will discuss the uses of acids, alkalis and salts combined, then I will explain where are these alkalis used for. So this was the types. Next हमारे पास आता है कि what is the common definition of alkalis. In my last lecture when I was explaining acids, जब मैं acids के बारे में बता रहा था, I had explained that Arrhenius एक साइंटिस्ट ना जिसने acids और alkalis दोनों के लिए उसने एक definition बताया था. अकॉर्डिंग टू Arrhenius, अगर एक्वस सोल्यूशन में हम लोग एसिड्स को डालते हैं तो हमारे पास क्या मिलता था? H+ यानी हाइड्रोजन आयन. नाउ अकॉर्डिंग टू Arrhenius, what are alkalis? Those compounds which when we dissolve in water, जब हम लोग उन compounds को पानी में हल करते and if they produce OH ion, OH ion का मतलब क्या है? हाइड्रोक्साइल आयन. They are known as alkalis. So this is the definition of alkalis. यहाँ पर आपको नजर आ रहा है there is a alkali sodium hydroxide when we dissolve them in water. हमारे पास सोडियम अलग हो गया and OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पर हमारे पास obtain हो गया. So this is an alkali. Okay, ये है alkali का definition. Next हमारे पास आता है कि what are the properties of alkalis. सबसे पहले first of all we will discuss what are the physical properties, those properties by which we can see from our eyes. Number one, all alkalis have bitter taste. जितने भी alkalis होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? बिल्कुल कड़वा या कटा होता है. If you remember, acids had sour taste. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है alkalis are harmful to human skin. ये भी ह्यूमन स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं लेकिन ये एसिड्स की तरह बर्निंग सेंसेशन पैदा नहीं करते. जैसे मैंने कहा था एसिड्स प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन बट दे आर आल्सो हार्मफुल टू आवर स्किन. नंबर थर्ड, दे प्रोड्यूस स्लिपरी फीलिंग ऑन टचिंग. व्हेनेवर जब हम लोग एल्कलीज या बेसिस को टच कर लेते हैं हमारे हाथ इस तरह स्लिप हो जाते हैं. दे हैव अ काइंड ऑफ अ स्लिपरी यानी सोप लाइक फीलिंग. सोप जो हमारे पास है डियर लिसनर्स, हमारे पास जो सोप है साबुन जिससे हम लोग हाथ धोते हैं, इट इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एल्कलीज. व्हाई? बिकॉज एल्कलीज की प्रॉपर्टी ये है कि इट हैज अ स्लिपरी फीलिंग व्हेनेवर वी टच इट. नंबर फोर, दे टर्न कलरलेस फिनोफ्थेलिन इनटू पिंक कलर. डियर लिसनर्स, हमारे पास एक फिनोफ्थेलिन एज अ पेपर है, ये केमिकल है. जब भी हम लोग इसमें किसी भी एसिड या एल्कलीज को डालते हैं तो ये उसको पिंक कलर में तब्दील करता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्कली. और एसिड्स का क्या है? अगर whenever we put acid in the colorless phenolphthalein, it will give acids a blue color. ये एसिड्स को ब्लू कलर देते हैं. इसीलिए हम लोग we use
phenolphthalein for the differentiation between acid and alkali. जब भी हम लोगों ने एसिड और एल्कलीज के दरमियान फ़र्क मालूम करना है कि कौन सा वाला एसिड है और कौन सा वाला एल्कली है, देन वी यूज दिस कलरलेस सॉल्यूशन बाय द नेम ऑफ phenolphthalein. ओके, सो whenever we put alkali in phenolphthalein it will give us a pink color. लास्ट हमारे पास आता है कि whenever we put alkalis in aqueous solution they are very good conductors of electricity. ओके, जब भी हम लोग किसी भी एल्कली को पानी में डालते हैं तो उससे करंट या इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है. द सेम प्रॉपर्टी वाज प्रेजेंट इन एसिड्स. सो दीज वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. लास्ट हमारे पास आता है कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, कि एल्कलीज आपस में जब रिएक्शन करते हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दे गिव अस. नंबर वन रिएक्शन जिसे हम लोगों ने लास्ट में इन माय एसिड लेक्चर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूट्रलाइजेशन. कौन सा रिएक्शन है? व्हेनेवर एन एसिड कंबाइंस विद एल्कलीज. जब भी ऐसे एल्कलीज किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं यानी किसी तेजाब के साथ, तो हमारे पास जो रिएक्शन में हमारे पास क्या आता है? साल्ट वाटर प्लस हीट. इस रिएक्शन के आखिर में हमारे पास नमक, पानी और थोड़ा सा कुछ हीट रिलीज होता है. दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि वन एल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. जिस द एसिड विच वी हैव इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारे पास रिजल्ट आया है सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास टेबल सॉल्ट है विद द रिलीज ऑफ वाटर प्लस यहाँ पर मैं लिखूं कि हीट. दिस रिएक्शन also releases heat. Next हमारे पास आते हैं the next chemical properties कि whenever alkalis react with ammonium salts. या ammonium salts का मतलब क्या है? Anything जो अमोनिया के साथ कंबाइन करता है क्लोरीन, that is called ammonium chloride या ammonium salt. तो हमारे पास क्या आता है? It gives us ammonia gas. हमारे पास आता है salt, ammonia gas and water. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड के साथ, we get sodium chloride plus ammonia प्लस वाटर. ओके, सो दिस इज अनदर रिएक्शन. और थर्ड यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, देन आई विल टेल यू. इसी तरह ओरली में बताऊंगा जो हम लोगों ने एसिड्स के साथ किया था कि व्हेनेवर वी रिएक्ट एसिड्स विद एनी मेटल, जिंक, आयरन, कॉपर, तो हमारे पास क्या आता है? सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. द सेम केस इज विद एल्कली. जब भी हम लोग किसी एल्कली को किसी भी मेटल के साथ, यानी वो जिंक हो, फॉर एग्जांपल इट इज आयरन, फॉर एग्जांपल इट इज कॉपर, जब हम लोग किसी भी एल्कली को एनी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास मेटल क्लोराइड और मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस आखिर में रिलीज होता है. द सेम प्रॉपर्टी विच एसिड्स हैव. अब डियर लिसनर्स देयर इज वन कंफ्यूजन. यहाँ पर मैं अपने इस टॉपिक को, आज के लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूँ, बट देयर इज वन कंफ्यूजन. हमारे पास दो टर्म्स आते हैं डियर लिसनर्स. वन इज एल्कलीज and one are bases. क्या फर्क है दोनों में? कुछ लोग, some people say that both alkalis and bases are the same thing. No dear listeners, now I'm telling you, you have to keep this in your mind. Alkalis and bases are not the same thing. What are alkalis? मैंने alkali की definition बता दी. Any compound when we dissolve in water it gives us OH ion. They are called alkalis. Okay, so bases क्या है? Bases are a type of alkalis. ये alkali के किस्म है which dissolve in water. ये फर्क है दोनों में. Alkalis give OH ion in water, whereas bases are a type of alkalis which dissolve in water. और हमारे पास एक आसान सा एक जुमला मैंने यहाँ पर लिखा है कि all alkalis are bases. जितने भी alkalis हैं सबको हम लोग bases ही consider करते हैं. But all bases are not alkalis. Why? Because bases are also one of the subgroup of alkalis. So this was today's topic. आज मैंने alkalis की introduction दे दी, the types, literal meaning, their properties, okay, literal definition, and आखिर में I gave you the differentiation between alkalis and bases. So I hope कि आप लोग समझ चुके होंगे. इसी तरह और लेक्चर अगर आप लोगों को चाहिए वीकली इसी तरह साइंस और बायोलॉजी के मेरे लेक्चर्स के लिए, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.